خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ گزشتہ 48 گھنٹوں میں صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 309 ہو گئی۔ 23 زخمی۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے۔ 74 گھروں کو نقصان پہنچا، 63 کو جزوی، 11 مکمل منہدم۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ اضلاع کے لیے 50 کروڑ روپے جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر مملکت کا اظہار افسوس۔ خیبر پختونخوا حکومت کا ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ۔ پاک فوج اور فرنٹیئر کور کے امدادی دستے بنیر، سوات اور باجوڑ میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ متاثرہ افراد کو ہیلی کاپٹر سے راشن اور دیگر سامان کی فراہمی، لوگ محفوظ مقامات پر منتقل۔ پاک فوج کے قافلے امدادی سامان لے کر سیلاب زدہ علاقوں کی جانب رواں دواں۔ پاک فوج مشکل وقت میں پختون عوام کے ساتھ ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر این ڈی ایم اے کی ٹیم پشاور میں امدادی کاموں کی نگرانی کر رہی ہے۔ این ڈی ایم اے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت اور پی ڈی ایم اے کو مکمل معاونت فراہم کر رہا ہے۔ این ڈی ایم اے تمام متعلقہ سول اور عسکری اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے اقدامات کو یقینی بنا رہے ہیں۔ بارشوں اور سیلاب کے دوران محتاط رہیں اور حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں۔ این ڈی ایم اے وفاقی وزیر امیر مقام کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر کے مختلف علاقوں کا دورہ، نقصانات اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں سے بھی ملاقات کی اور ان سے تعزیت کی۔ قدرتی حادثہ ہے، سیاست نہیں کرنی چاہیے، مشکل وقت میں پوری قوم متحد ہے۔ بڑے پیمانے پر عملہ اور مشینری پہنچ گئی ہے۔ ریسکیو آپریشن سمیت علاقے کی مکمل بحالی تک کام جاری رہے گا۔ میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں، زخمی اور بیمار افراد کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ امیر مقام وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے سیلاب میں بہادری کا مظاہرہ کر کے کئی قیمتی جانوں کو بچانے والے سوات کے بے لوث رضاکار محمد بلال اور عصمت علی کو 10 لاکھ روپے کا انعام دیا۔ تمام رضاکاروں اور امدادی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں امیر مقام۔ بنیر، باجوڑ اور بٹگرام شدید بارشوں اور فلیش فلڈ سے سب سے زیادہ متاثر۔ باجوڑ اور بنیر میں ریسکیو آپریشن جاری۔ شدید بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک جاری رہنے کا امکان۔ سیاحتی مقامات پر بند شاہراہوں اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کا مانسہرہ اور بٹگرام کے دور افتادہ پہاڑی علاقے ڈھیری حلیم بند کا دورہ۔ کلاؤڈ برسٹ کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس بارشوں اور سیلابی ریلوں سے متاثرہ اضلاع میں ہونے والی نقصانات، ریسکیو اور ریلیف کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ۔ متاثرہ اضلاع میں فلڈ اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ۔ منقطع علاقوں تک رسائی کے لیے رابطہ سڑکوں کی بحالی پر کام جاری۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل ٹیمیں، ادویات، اشیاء خورنوش اور دیگر ضروری سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ بحالی کے کاموں کے لیے وفاقی حکومت اور پاک فوج معاونت کر رہی ہے۔ انتظامیہ کی وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سے تباہ کاریاں، 33 افراد جاں بحق، 26 زخمی۔ شاہراہ بلتستان پر باغیچے کے مقام پر پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ ہستک نالے میں اونچے درجے کے سیلاب سے ملحقہ ہوٹل اور دکانیں زیر آب آ گئیں۔ سیاحوں کی گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آنے سے گائیڈ جاں بحق، 3 زخمی۔ ہنزا میں ششپر گلیشیئر پگھلنے سے حسن آباد نالے کے دونوں اطراف کٹاؤ کا سلسلہ جاری۔ نلتر ایکسپریس وے کا بڑا حصہ پانی میں بہہ گیا۔ نلتر میں واقع 3 بجلی گھروں سے سپلائی معطل۔ جگلوڈ گروں میں پانی گھروں اور ہوٹلوں میں داخل ہو گیا ہے۔ غزر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا رکھی ہے، متعدد دیہات زیر آب آ گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں ہیلپ لائن 911 فوری طور پر فعال۔ یہ اقدام بارشوں اور سیلاب سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ متاثرہ علاقوں کے شہری 911 پر رابطہ کر کے ہنگامی مدد حاصل کر سکیں گے۔ اس نظام سے موبائل نیٹ ورک کے ٹاورز متاثر یا غیر فعال ہونے کی صورت میں بھی نیٹ ورک کام کرے گا۔ ترجمان وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن۔
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली से मुतालिक खुसूसी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। पाक फौज ने एक दिन की तनख्वाह और राशन खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर आवाम की बहाली के लिए मुख्तस कर दिया। फील्ड मार्शल की कोर ऑफ इंजीनियर्स को पुलों की जल्द मुरम्मत और आरसी पुल कायम करने की खुसूसी हिदायत। सिक्योरिटी ज़राए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेले से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मी होने वालों की सेहतयाबी की दुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायज़ा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार के मुताबिक ट्रेजरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और इसमें मसनूई ज़हानत का इतलाक़ किया जाए। वज़ीर आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से बरतानिया का दौरा कर रहे हैं। बरतानवी हम मनसब एंजेलो रेनर से मुलाकात करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए पाकिस्तान हमीश फॉल्कनर से भी मुलाकात होगी। इसहाक डार हाई कमीशन लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। मनसूबा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़मीनों के कागजात के मसाइल हल करने की सहूलत देगा। ISPR के ज़ेर एहतमाम इंटर्नशिप प्रोग्राम DGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। बलोचिस्तान के आवाम दहशत गर्दों से तंग आ चुके हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस आवाम की मदद से कामयाब हो रहे हैं। पाक फौज और शहरी दहशत गर्दी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। फौज का मकसद दहशत गर्दों का खात्मा है, लोगों को नुकसान पहुँचाना नहीं। बलोच नौजवान अपनी तकदीर खुद संवार रहे हैं। DGISPR। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रहायश गाह आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के वालिदैन, भाइयों और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत फातिहा खानी की। कैप्टन मोहम्मद आसिफ 12 अगस्त को बलूचिस्तान के बस्तीमा शहर में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पूरी कौम शुहदा के ख़ानदानों की अजमत को सलाम पेश करती है। मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशात अताउल्लाह तारर से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन खान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, मीडिया ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती शोबों में बांग्लादेश के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। मीडिया के शोबे में ताउन नहायत अहम है। फिल्म, ड्रामा और डिजिटल मीडिया में इश्तराक से खित्ते में मुस्बत बयानिया फ़रोग़ पाएगा। अताउल्लाह तारर। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से राब्ता। जानी व माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वफाकी वज़ीर की वज़ीर आला को शाहराहों और पुलों को होने वाले नुकसान की जल्द बहाली की यकीन दहानी। KPK में सड़कों और पुलों की तामीर और मरम्मत पर तेज़ी से काम हो रहा है। मानसेरा, नारायण, जलखड शाहराह ट्रैफिक के लिए खुली है। बह जाने वाले पुलों की तामीर शुरू। शाहराहों की मुकम्मल बहाली तक अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से टेलीफोनिक राबता। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से नुकसानात और कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने की यकीन दहानी। दुख की इस घड़ी में सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के साथ खड़ी है। सैयद मुराद अली शाह। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल, PTV न्यूज़ की बर वक्त कवरेज कौमी जिम्मेदारी के तहत PTV न्यूज़ फ्रंट लाइन पर मौजूद रहा। रीजनल ब्यूरो से लम्हा ब लम्हा बराह रास्त रिपोर्ट्स, मुतासरा आवाम की आवाज़ हुकूमत तक मौसर अंदाज में पहुँचाई। रेस्क्यू ऑपरेशंस, इंतज़ामिया की सरगर्मियाँ और अवामी मुश्किलात को उजागर किया। हेलीकॉप्टर व्यूज़ और ज़मीनी हक़ाइक़ की जामे रिपोर्टिंग। अमेरिका और रूस के सदूर के दरमियान अलास्का में तारीखी मुलाकात। मौक़िनीन के हमरा दोनों रहनुमाओं के 3 घंटे तक मुज़ाकरात। सदर ट्रंप और सदर पुतिन का यूक्रेन में जारी 3 साला जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल।
जंग बंदी के हवाले से कोई बासाब्ता फैसला ना हो सका, गैर मुल्की ज़राए इत्तला। सदर पुतिन के साथ मुलाकात तामीरी रही, बहुत से मामलात पर पेशरफ्त की। सबसे पहले यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन करूंगा। सदर ट्रंप, बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हुआ है। मुज़ाकरात के लिए अलास्का दावत देने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। सदर पुतिन के अमरीकी हममंसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर में 2 रोज से जारी तूफानी बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट से बड़े पैमाने पर तबाही। वादिय नीलम और जहलम के मुख्तलिफ इलाकों में पहाड़ी नदी नाले बिफर गए। हादसात में एक ही घर के 6 अफराद समेत 9 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 घंटे के तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रत्ती गली में फंसे 700 से जायद सयाहों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जलजाल झील के एक बंद का आधा हिस्सा टूट गया। दरिया जहलम और दरिया नीलम में सैलाब, दरियाओं के करीब आबादियों को खाली करवा लिया गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल दूसरी बार नुमायां कमी। हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 12 रुपये 84 पैसे की नुमायां कमी। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 19 पैसे की बड़ी कमी। लाइट डीजल भी 8 रुपये 20 पैसे सस्ता। वजारत खजाना। चीन में पाक बहरिया की तीसरी हंगूर क्लास आबदोज PNSM मांगरू की लॉन्चिंग तकरीब। आबदोजें खित्ते में ताकत का तवाज़ुन और अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। पाक बहरिया महफूज और मुश्तरका माहौल को फ़रोग़ देते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट वाइस एडमिरल अब्दुल समद का तकरीब से खिताब। FPCCI मुल्क भर की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही है। मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए निजी शोबे का किरदार अहम है। आज मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, जिसकी गवाही आलमी इदारे दे रहे हैं। मुल्क की दर्जाबंदी में बेहतरी आई है और पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी रोज। नामजद बैंक दिन 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। वजारत का ऑनलाइन पोर्टल रात 12 बजे बंद हो जाएगा। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की तादाद 1,08,000 तक पहुंच गई है। आज़मीन हज मोबाइल ऐप पाक हज 2026 के जरिए अपने कवायद देख सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए वजारत से हमवक्त रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। तर्जुमान मजहबी उमूर। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का सैलाब और क्लाउड बर्स्ट में कीमती जानों पर इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में नुकसानात पर अफसोस हुआ। बहादुर रेस्क्यूअर्स भी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलिया अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ यकजहती से खड़ा है। हमारी हमदर्दियाँ और दुआएं तमाम मुतासरीन के साथ हैं। नील हॉकिंस। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लिक्सन की ऑकलैंड में तकरीब में खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल अजीज अहमद ने अलामती परचम कुशाई की। वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लिक्सन की पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात को उजागर किया। चेंगडो में वर्ल्ड गेम्स इनलाइन स्केटिंग में कोलंबिया और स्पेन ने तिलाई तमगे जीत लिए। बॉल स्पोर्ट्स में इटली ने सोने का तमगा हासिल किया। किक बॉक्सिंग ख़वातीन में इटली, बरतानिया और हंगरी के गोल्ड मेडल्स। मेंस किक बॉक्सिंग में हंगरी, ऑस्ट्रिया, यूनान ने तिलाई तमगे जीते। चीन में दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स जारी। बीजिंग में गेम्स का शानदार आगाज इफ्तिताही तकरीब के साथ हुआ। गेम्स में 16 ममालिक की 280 टीमें शरीक। रोबोट्स के दरमियान 26 इकसाम के इवेंट्स में 487 मुकाबले कराए गए। रोबोट्स ने दौड़, फुटबॉल मैचेस और रक्स का बेहतरीन मुजाहरा किया। अमरीकी रियासत ओहायो में ATP 1000 सिंसिनाटी ओपन टेनिस। स्पेन के कार्लोस अल्कराज, जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव,
सेमी फाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अल्काराज ने रूस के आंद्रे रॉबलेव को शिकस्त दी। जेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। अमेरिका में WTA मास्टर्स 1000 सिनसिनाटी ओपन डिफाई चैंपियन और आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबालेंका को अपसेट शिकस्त का सामना। क्वार्टर फाइनल में सबालेंका को काजाख्स्तान की अलीना रबकीना ने स्ट्रेट सेट्स में मात दी। पोलैंड की एगा श्वेटेक ने रूस की अना कलांसाकाया को शिकस्त देकर लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई किया। ओशन रेस यूरोप का पहला मरहला बायोथ्रिम ने जीत लिया। फाइनल फ्रांस की बायोथ्रिम ने जर्मनी से पोर्ट्समाउथ तक का मरहला सबसे पहले मुकम्मल किया। जर्मनी की टीम अलेजिया दूसरे नंबर पर रही। स्विस टीम हॉल्सिंग और इटली की टीम एलाग्रांडे मापे एक दूसरे से टकराकर मुकाबले से दस्तबरदार हो गई थी। रेस की पोर्ट्समाउथ से स्पेन में कार्नाजेटा तक 1400 नॉटिकल माइल्स पर मुश्तमिल दूसरी लीग कल शुरू होगी। और वर्ल्ड सर्फ लीग फ्रांसीसी स्टॉप तहेटी प्रो ऑस्ट्रेलिया के जैक रॉबिन्सन और उनकी हमवतन मौली पकलम फाते रही। जैक रॉबिन्सन ने कैलिफोर्निया के क्रेपन कोलापंटो को मात दी। मौली पकलम ने कैलिफोर्निया की कैटलीन समर्स को हरा दिया।